So जब भी कनाडा की बात करो, मूविंग टू कनाडा इज अ ड्रीम ऑफ I don't know unlimited thousands, hundreds of people out there, but very few can make it happen. Moving to Saskatchewan province and Saskatoon city has become the top most choices these days. Today I'm going to talk about some pros and cons of life or some pros and cons of living in Saskatoon. So first thing first, Saskatoon economy. Saskatoon's economy is expected to expand faster than other cities in the country this year, according to the report of the Conference Board of Canada. GDP for the city is expected to increase by 3% this year and 2.9% in 2024, the report says. Despite of the slower growth in economic activity this year, the city anticipated growth will be higher than that of the other most cities in Canada. So basically Canada में बाकी जो in comparison to other provinces, Saskatoon की जो economy है ना वो अच्छी काफी अच्छी growth हो रही है. The city is pretty small, बहुत बड़ी city नहीं है, बहुत expanded नहीं है. If you want to commute from one part of the city to the other part of the city, it hardly takes 15 to 20 minutes. It's enough. आप बहुत आसानी से अपनी public transport में नहीं, private transport में आराम से पहुंच सकते हो. It doesn't take long और not in daily life. अगर आपको commuting पे काम पे भी जाना है तो आपका जो work place होता है, आपके work place घर से वो भी maximum 15 to 20 minutes is the maximum time limit जो आप आराम से पहुंच सकते हो. सो इन रिटर्न आप बहुत सारा टाइम सेव करते हो कम्यूटिंग में. जो बड़ी सिटीज़ में या रिलेटिवली अदर प्रोविंसेस में आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो टाइम कम्यूटिंग में. सो इन रिटर्न यू गेट अ चांस टू स्पेंड योर टाइम लाइक डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ घर पे फैमिली के साथ या कुछ भी है. सो इट्स रिलेटिवली नाइस कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है. So next thing, property. So property is very important factor which you must think. आपको पता होना चाहिए कि it's not super expensive. I know it's expensive. जब हम यहाँ होते हैं हमें expensive लगता है. But if I compare the prices of the property and if I compare the real estate market of Saskatchewan compared to any other provinces, it's incomparable. Trust me, it's incomparable. It's unaffordable to buy a house in some of the other provinces. वहाँ पे for not just the property. जब आप property लेते हो, you have to think about the property taxes and some other expenses जो घर लेने के बाद आपको होते हैं. So वहाँ पे वो सारी चीज़ें इतनी expensive हो जाती है. So not just the property के साथ जब आप private transport भी लेते हैं, so उनके भी license insurance के जो papers होते हैं वो भी सारे चार्जेस होते हैं, वो भी सारे एक्सपेंसिव हो जाते हैं. सो इन रिलेटिवली प्रॉपर्टी यहाँ पे इट्स अफोर्डेबल. I don't know when, but it is fairly priced. So when it comes to driving license, based on my research and opinions of some of my friends and acquaintances, I got to know that it's relatively easy to get a driving license in Saskatoon. When it comes to expenses, in comparison to other provinces, Saskatchewan is relatively less expensive. So for example, like I mentioned, प्रॉपर्टी टैक्सेस, कार इंश्योरेंस की प्राइसेस, और फॉर एग्जांपल आप बाहर आज डिनर के लिए जा रहे हो, लाइक आप ग्रॉसरी लेने जा रहे हो, लाइक आप आज कहीं घूमने जा रहे हो, आज आपको कार लेनी है. सो इट इज़ नॉट सुपर डुपर चीप, but in comparison to other cities or other provinces, Saskatoon is really affordable and less expensive. In following to the expense, there is another very tiny point, of course tiny and really important point, क्योंकि it is expensive, less expensive, you get a fair chance or very nice opportunity to save money very nicely. क्योंकि आप expense कम करते हो, आपकी income quite decent होती है, so you get a chance कि आप अच्छा खासा money save कर सकते हो. I have got to know some people live paycheck to paycheck. It's really important. I mean, not for everyone, but for me, it's really important कि आप जितना expense कर रहे हो, but at the same time, you get to save some money here. So last but not the least, people. So people over here in Saskatoon is very friendly. They are very welcoming. They are very amicable by nature. वो हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा cooperating होते हैं. Very courteous. You never feel like you are out of their culture. You are very different from them. In day-to-day life, having such people around us is really important. क्योंकि कभी-कभी आप अकेले पड़ जाते हो. You are away from your family, your surrounding, your culture, your country. So that comes to the end of the pros. Next comes is cons. कि मेरा बैकग्राउंड और
फील्ड ऐसा है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट हिट्स मी द मोस्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. सो Saskatoon का इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सुपर डुपर अट्रैक्टिव. इवन इफ यू गो टू Saskatoon डाउनटाउन यू गेट टू सी द हाई राइज बिल्डिंग, बट वो भी उतनी ज़्यादा टॉल और उतनी ज़्यादा हाई स्काई स्क्रेपर्स और ऑल ग्लेज्ड फेंस्ड वैसी वाली बिल्डिंग नहीं दिखती है. आई नो देयर आर सर्टन लाइक न्यूट्रिएंट टावर और ऐसे 2-4 बिल्डिंग्स हैं, बट इट्स नॉट super attractive. So another con of living in Saskatoon is still counted under developing city. It's still not be comparable, or it's still not close to other metro cities, and like having the benefits of the metro cities. So metro cities के अपने benefits होते हैं, अपने advantages होते हैं. यहाँ पे उतने benefits और advantages पैसे वाले नहीं हैं. So transit system यहाँ पे it's very obvious being an immigrant or a student आते ही आपके पास गाड़ी नहीं होती है. Takes you a while to get your own vehicles. So for that time being you are completely dependent upon the public transport. जैसे कि मैंने प्रोज में बताया था कि यहाँ पे कोई भी जगह 15 से 20 मिनट कहीं से भी दूर नहीं है. सो बट अगर आप वही सेम डिस्टेंस अगर आप अपनी बस से ट्रांसपोर्ट कम्यूटिंग में करने लगो, समटाइम्स 1 to 1.5 hour डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, सो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है कि जो चीज़ हम 15 मिनट में कर सकते हैं वो हम 1.5 घंटे में. क्यों? ऑफकोर्स क्योंकि बस कोशिश करती है कि हर रूट को कवर करे, हर स्टॉप को कवर करे. दे आर डूइंग देयर जॉब, बट इट डजंट रियली हेल्प कि बहुत लोगों को 1-1 घंटा 1.5 घंटा, स्पेशली काफ़ी लोगों को जब क्लोजिंग की जॉब होती है, क्लोजिंग मीन्स कभी 9 होता है, 12 होता है, 9 होता है, 11 होता है डिपेंडिंग. तो उस समय क्लोजिंग के बाद आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट करना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने घर आना समटाइम इज़ really painful है. और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वीकेंड्स और इवनिंग आवर्स, इट्स नॉट गुड. वो क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है बसेस की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. लो कनेक्टिविटी, आई नो ये कौन बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के लिए नहीं है. व्हेन इट कम्स टू लो कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल इट्स बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है. जो अगर आप मैप में देखो Saskatoon इज़ वेरी मच आइसोलेटेड, बहुत ही अलग लोकेशन पे है. सो इसकी जो कनेक्टिविटी है टू मेजर पोर्ट्स या मेजर सिटीज़, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. स्पेशली मतलब 2-3 केसेस है. फॉर एग्जांपल आपको इंडिया जाना है, यू हैव टू गो थ्रू आइदर लाइक एनी अदर मेजर सिटीज़. यू कैनॉट हैव यू डोंट हैव द डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू. फॉर एग्जांपल आपको इंडियन वेजिटेबल्स लेना है, इंडिया के प्रोडक्ट्स लेने हैं, कोई भी चीज़ इंपोर्टेड लेनी है, सो यहाँ आते उसकी कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है because this has to come through any other major cities. So next con is low population. So demography of Saskatoon is pretty low, due to which the opportunities, the expansion, the business, especially if you're from the business background, it's really important for you to have a good demography in your neighborhood or in your city. So वो चीज़ is employment opportunities. So when it comes to employment opportunities, Saskatoon major industry is mine and farming. As long as you're from these 2 industries, it's super awesome and super demanding. But I know major of the population जो यहाँ पे migrate होती है, जो यहाँ की already है, they are not from this industry. So you find really hard and it becomes really difficult for you to get the employment. और यहाँ पे जो बाकी चीज़ों में like food industry is also growing, but food industry में भी आपको job करना it's not something super duper feasible as long as वो आपकी इंडस्ट्री हो. वेदर कंडीशन, Saskatoon की वेदर कंडीशन एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता है कैसी होती है. टाइम इट गोज टू लाइक -40 इज द हाईएस्ट जो मैंने अब तक देखा है, या -42. लाइक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि समटाइम्स इट्स फाइन कि आप अंदर रहते हो, कि आप सारा कुछ डील कर लेते हो, बट जब आप बाहर होते हो, जब आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आना जाना होता है, ग्रॉसरी लेने जाना होता है, इतनी ठंड में इतने भारी बैगेजेस ग्रॉसरी के लेके बस स्टैंड तक जाना, -40 में, विंडी में, जब यहाँ तक स्नो भरी होती है. ठंड तो ठंड होती है बॉस, कुछ भी बोल लो, इट्स समटाइम यू हैव टू डील विद इट. सो ठंड में जब -40 या -20 वाली सिचुएशन होती है, वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट और जो ठंड की वजह से बहुत सारे और भी जो इश्यूज होते हैं ना, वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं. सो फ्रॉस्ट बाइट इज समथिंग जो कभी कभी लोगों से डील नहीं हो पाता है, और वो बहुत ज़्यादा हाथ है ना एकदम जकड़ से जाते हैं. कभी कभी तो आई हैव हर्ड कि उसकी वजह से किसी के बोन्स में भी क्रैक्स होते हैं. सो इट्स difficult. Another con of living in Saskatoon is the city is quite
बोरिंग एंड काइंड ऑफ इट्स क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ या बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ स्पेशली इन विंटर्स इट बिकम्स रियली डल. लाइक आफ्टर 6 और 7-ish, विंटर की बात कर रही हूँ, 7 तो बहुत ज़्यादा हो गया, आफ्टर 6-ish बाहर ये बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती है. आप जैसे कि जॉब से निकलते हो 5 o'clock 5:30 फ्री होते हो, 6 o'clock अगर आप कहीं जाने की सोचो, एक्सेप्ट दोस ग्रोसरी स्टोर्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे कुछ क्लोज हो जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स थोड़े से डल हो जाते हैं. सो बेसिकली आपको लगता है कि विंटर्स में लाइफ बहुत डल हो जाती है. आई हैव डन माई जॉब, इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू मस्ट हैव टू थिंक कि आपके लिए कौन सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइजेबल है. ऑफकोर्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज सम ऑफ द अदर थिंग, राइट. कहीं भी जाओ तो इट्स टोटली अप टू यू what you want to compromise, what you cannot compromise. So based on that, you have to make your own decision. So okay, so it's time to wrap up this video. I hope your video आपको informational लगी हो, useful लगी हो. If yes, then do not forget to subscribe to my channel. Do share this video with your friends and family and to all those which you think that this video could be helpful. So I'll see you in next video. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ तब तक खुश रहो, मज़े में रहो, मस्ती करो, ऐश करो, शॉपिंग करो और खुश रहो.